सतनाम श्री वाहिगुरु जी। डंडौत बंदनन कबार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सयाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधव हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देसा, तुम सब साजे साज निवाजे। जियो पिंड दे प्राणा, निर्गुण यारे गुण नहीं कोई। तुम दान दे हो मेहरबाना, तुम करो भला हम भलो न जाना। तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख विधाते। तुम राखो अपने बाला, तुम निधान अटल सुल्तान। जी जंत सब जाचै, कहो नानक हम इह हवाला। राख संतन कै पाछै, बाणी मुखों उचारिया होए रुशनाई। मिटा अंधियारा, ज्ञान गोष्ठ चर्चा सदा। अनहद शब्द उठे धुनकारा। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहाँ बिलोवस पानी। हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहाँ बिलोवस पानी। काया मांजस कौन गुना, जो घट भीतर है मलना रहा। लौकी 68 तीर्थ नाई, कौरापन तऊ न जाई। कह कबीर बिचारी, भव सागर तार मुरारी। कह कबीर बिचारी, भव सागर तार मुरारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु महाराज धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की परम पवित्र कल्याणकारी हजूरी अंदर सुभाएमान सतगुरु जी की साजी निवाजी परम सन्मानयोग गुरु का रूप खालसा साध संगत जीओ। सतगुਰਾਂ ने परम कृपालता की है कि सतसंगत की दात नाल सानू सतगुरु जी निवाज रहे हैं। शामां दे समय दे दीवान अंदर रहराज साहब के पाठ तो उपरंत भाई हजारा सिंह जी ते उन्हां दे जथे ने हजूर की पावन बाणी का बहुत मिठास भरपूर आवाज़ विच प्रेम पूर्वक कीर्तन आप संगत नूं सरवण कराया है। हुण इस तरह सतगुरु जी की पावन बाणी की विचार का समा है। होरना साधना तो उत्तम साधन गुरबाणी का पाठ कीर्तन कथा जाप सिमरन ये गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने तमाम संसार के ताईं ये साझा उपदेश बख्शिश किया है। साढ़े मनां दे शंकियां का समाधान करने लई अध्यात्मक प्रश्नों का जवाब देंदियां होइयां सतगुरु जी ने और मनां नूं प्रेरणा दे के नाम जपण विच लाउण वास्ते साडी कल्याण वास्ते ये बाणी उचारण की है।
ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆਦਿਕ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਖਨਵਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਨਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਂਘੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਸਕਾ ਦੁਆਰਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪਤਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਪੂਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੰਦਨ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਕੜੀ ਜਾਂ ਕਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਧੂੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਨਿਧਾਂ ਹਨ, ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੰਸ ਪੰਛੀ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਆਦਿਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਿਰਾਗ, ਵਿਵੇਕ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ, ਨਾਮ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਇਲਾਕੇ, ਸਭਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸੰਸਥਾ, ਧਰਮ ਫਿਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਕਪਟ ਹੈ, ਛਲ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਲਤੀਆਂ, ਗੁਨਾਹ, ਐਬ, ਦੋਸ਼, ਪਾਪ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਪਟ ਹੋਵੇ, ਛਲ ਹੋਵੇ, ਫਰੇਬ ਹੋਵੇ, ਵਿਖਾਵਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਪਰਮਾਰਥਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਹੀ ਵਿਖਾਵਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਖੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਲ ਛਲ, ਫਰੇਬ, ਧੋਖਾ, ਠੱਗੀ, ਵਿਖਾਵਾ, ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਨਾਵਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮਾਥੈ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਣਾ, ਲੋਕਨ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਲਿਆ, ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾ ਲਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਬਾਣਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿੱਟਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਵੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਗਲੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਗਲੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਗਲ ਸਮਾਧੀ ਮੀਨ ਆਹਾਰਾ। ਬਗਲੇ ਦੀ ਜੋ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਉਹ ਮੱਛੀ ਰੂਪੀ ਖੁਰਾਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਕੇਵਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵਸਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ
आत्म ज्ञान के नेड़े सानू लै जाए। जो मिलावट वाला है, विखावे वाला कर्म है, वो असल में धार्मिक कर्म नहीं है, वो विहार है, व्यापार है, उन्होंने धर्म का काम नहीं किया जा सकता। कोट मध्य को बिरला सेवक होर सगले व्यवहारी। करोड़ों विचों कोई विरला रब का भगत है, बाकी संसार के जीव बिहारी हैं। यानी कि धर्म का काम करके भी अपने विहारां की सिद्धि वास्ते ही उन्होंने प्रयोजन है भी विहार सिद्ध हो आ काम हो जाए, मिल जाए, मिल जाए। सो इस वास्ते जिवें सतगुरु नानक देव महाराज ने वचन किए हैं कि पढ़ पुस्तक संध्या बादन सिल पूजस बगल समाधन। पत्थरां नूं पूजदे हो तो समाधि भी बगले वर्गी लगाउंदे हो। मुख झूठ विभूखण सारंग। मुख तो बोलते हो झूठ, तो झूठ इस ढंग नाल बोलते हो भी जिवें मलम्मे के गहने होवे तां पित्तल उपर सोना का रंग फेरिया होवे ते वो गहने जिवें मनुख की नज़र नूं भुलेखा पाउंदे हन भी असली ने। इस तरह सार मैं लोहा लोहे के उपर जिवें सोने का मलम्मा चाढ़िया होवे। मुख झूठ विभूखण सारंग त्रैपाल ते हाल विचारन। तिन्ना लोगों की प्रतिपाला करने वाला जिहड़ा वाहिगुरू है ना, वो तुहाडे अंदरले हाल नूं विचारदा पिया, उहनूं सारा पता तुहाडे अंदर की है। रब नाल ठगी नहीं कोई मार सकता, परमात्मा नाल कोई ठगी नहीं मार सकता। वाहिगुरू जी अंदर की गलबात सब जानते हैं। इस करके इत्थे भगत कबीर जी भी ये गल कह रहे हैं कि जिहड़े लोग हिरदे अंदर ते कपट पाल रहे हैं तो मुख तो गल्लां ब्रह्म ज्ञान दियां करते हैं। मुख तो गल्लां इहो जिहियां जिमी समान दे कलापे इंज प्रतीत होवे जिवें ये ब्रह्म ज्ञानी है। सतगुरु महाराज ने लिहाज नहीं किसी का किया, ये साडे उपर ढुकदी है गल, बिल्कुल साडे खिलाफ जा रही, यानी खिलाफ नहीं। सो सच्चे पातशाह जी सानू झाड़ रहे हैं तो मूँह का ज्ञानी नहीं केवल बनना, ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा भी अंदर होवे भी जो कुछ सतगुरु की बाणी नूं असीं विचारते हाँ, पढ़ते हाँ, ये ज्ञान सानू प्राप्त होना चाहिए। ये वास्ते पहला जग्यासा पैदा होवे, जग्यासा तो फिर बाद मेहनत कमाई तरद्दत, तो उस तो बाद कदे वारी आवेगी ज्ञान की जे सिदक रखिया तो हिरदे च सिदक रख के लगा रहा जीव तो कदे मंजिल जरूर मिलेगी। पर जे रब ते भरोसा है नहीं, केवल मुख का ज्ञानी है, विखावा है, तो फिर महाराज साहब कहते असीं पसंद नहीं करते। सो हिरदा जिनका कपट वसा बाहरों संत कहाहे तृष्णा मूल ना चुकई। और महाराज कहते हैं वो अंदरों तृष्णा बिल्कुल नहीं दूर होंदी और अनेकों वारी वो जम्मण मरण के चक्कर में पिया रहिंदा। हिरदे विच कपट है तो मुख तो संत कहा रहा, यतन उहदा यह है कि मैनू लोग संत कहण। इस तरह के भेख वाले लोग भेखी पहला तो जो दुनिया चली आ रही है विच आउंदे रहे, हुण भी ने रहणगे, पर रियलिटी असलीयत भी हुंदी है। ये नहीं भी सारे लोग दुनिया ते पखंडी हैं, जो भी धर्म के काम कर रहे हैं सारे विखावा ही है, ये पखंडी ने, ऐसी नहीं गल। सच्चे दिलों रब की भगती करने वाले भी लोग हैं जिन्हां दी मंजिल है कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है। और जिहड़े लोग इस तरह अंदर भावना इहो जी रख के चले होण उन्हां नूं मंजिल भी प्राप्त होंदी है। जो पौंटा साहब स्थान है ये बनन का कारण एक गुरमुख की, एक भगत की सच्ची भगती का प्रताप है। तां सतगुरु जी इत्थे गए सी। ये नाहड़ रियासत है, उस वेले रियासतां सी ये 22 धार दियां, इन्हां विचों नाहड़ रियासत का राजा मेदनी प्रकाश सी, उहदे राज विच धरती पैंदी सी। ते उहदे नाल दी रियासत सी श्रीनगर, उत्थों का राजा सी फतेह चंद। और फतेह चंद पहला इहदे नालों कुछ तगड़ा सी, हुण उहदी रिश्तेदारी बन गई कहलूर वाले राजे भीम चंद नाल। उहदे मुंडे जमेर चंद नाल इहने अपनी कुड़ी मंग दित्ती। मेदनी प्रकाश राजे नूं फिक्र पै गया कि मेरा राज ये खो लैगा। ये दोवें ही भैड़े सुभाਅ दे हंकारी हैं, ये मिल के मेरा राज खो लैणगे। इस करके फिक्र पै गया। गरीबी विचों अमीरी च पहुँचना तो कोई औखा नहीं, पर राज भाग माणदिआं
सड़क ते आ जाना, गरीबी 'च आ जाना, उन्हां लोकां वास्ते बहुत कठिन है जिंदगी जिउणी। गरीबां वर्गी जिंदगी अमीरां नूं जिउणी बहुत औखी। इस करके फिक्र हुंदा राजिਆਂ ਨੂੰ। उसने वजीर नाल सलाह की कि कोई करामात रखण वाला बंदा लभीए। बाबा राम राय जी वल ध्यान गया, कहण लगे ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ मित्रता ਇਹਦੇ ਨਾਲ फतेह चंद नाल, साडी सहायता ਉਹ नहीं करनगे। फिर वजीर ने दस्सिया कि राजा तेरी रियासत विच जिथे जमुना दे विच एक टौंसा नां दी नदी मिलती है, उत्थे कालसी नां दा पिंड है, तो उस पिंड के बार-बार एक पहाड़ी की हठाड़वार पहाड़ी के थले पैरों च एक ऋषि रहिंदा, बजुर्ग होया होया बंदगी करदे सारी उम्र लंघ गई। उहदे पास जरूर कुछ ना कुछ होवेगा, रिद्धी सिद्धी ताकत होवेगी। दोवें वजीर ते राजा घोड़ियां ते सवार हो नाल कुछ सिपाही लैके उत्थे पहुँच गए। और जिस वेले उस ऋषि नूं मिले, महात्मा नूं मिले ते मिल के अपनी बेनती की, उसने हथ जोड़ के कहा, राजा मैं तेरे राज भाग विच सारी उम्र हंडाई है, इसकी सलामती वास्ते कुछ करना मेरा फर्ज है, पर राजा मजबूरी ये है कि जिस मेरे उस्ताद ने, महात्मा ने, मेरे गुरु ने मैनू बंदगी करन लाया सी, जिस दी प्रेरणा नाल मैं बंदगी करन लगा, उसने कहा सी कि बेटा रिद्धियां सिद्धियां विच ना परची, इच्छा ना करी, ये रस्ते की रुकावट है, और जे तू इस तरह बंदगी करता रहा, रिद्धि सिद्धि के मगर ना पिया, तो तेरी मंजिल तैनू मिलेगी, इसे जन्म में प्राप्ति होएगी, वाहिगुरू का दर्शन तैनू होवेगा। इस करके राजा मेरी मजबूरी है कि मेरे कोल ये दात है नहीं। राजा ते वजीर नाराज़ हो के तुरे। इसने मगरों पिछों आवाज़ दी, राजा मेरी गल सुनदा जी। जो वापस परते कह लगे, राजा मेरे कोल तां कुछ नहीं, पर जिन्ना सारी जिंदगी मैं सिमरन भजन किया, उहदी बदौलत मेरी सुरत विच एक झलकारा पैंदा है, ते आवाज़ आउंदी है कि जिसदा तू सिमरन करदा वो शरीर धारी हो के मात लोग ते आया है, और इस तरह दरम्याना जा उहदा कद है, पतली कमर है, चौड़ी छाती है, दगदग करदा स्यो वर्गा चेहरा है, चढ़ती जवानी की उम्र है, दाड़ा आ रहा है, और वो तीर कमान भी रखते हैं, शमशीर उन्होंने गल होंदी है, जाहो जलाल है, और बड़ा ठाठ बाठ है, उन्हें फौज भी रखी हुई है, तो उन्होंने गुरु अवतार करके जानिया जाता। गोबिंद गोबिंद नाम है उन्होंने। राजा मेरे कोल तां ताकत है नहीं कि मैं खोज भाल करा, तेरे कोल सारा इंतजाम प्रबंध है कि ते खोज भाल कर, मात लोग तो इस धरती ते ही हैं, जे मिल पे तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, दोवें जहान ही तर मुख उजला होगा, इस जहान दे विच भी तेरी वाह वाल नहीं कोई वेख सकेगा, परलोक विच भी तेरी सहायता होगी। पर राजा जे मिल पैण ते मेरा भी एक स्नेहा उन्होंने चरणों च अर्ज कर दे। दसो जी महात्मा तुहाडा की स्नेहा? कह लगे उन्होंने बेनती करदे कि तुहाडे दर्शनां नूं सिख दा सदराउंदा, लुछदा, तड़फदा एक बुढ़ा ब्राह्मण टौंसा नदी के किनारे ते इस दुनिया तो फानी संसार तो तुर गया है, उहदी बौड़ी करनी, उहदे कोल आदमी है नहीं सन, उहदे कोल खजाना नहीं सी, उहदे कोल किसी तरह का प्रबंध नहीं सी, उहदे शरीर विच सत्या भी नहीं सी रही, जिस करके तुहाडी खोज करदा। हुण परलोक विच उहदी जरूर बौड़ी करन। इस तरह विराग दे नाल हंझू केरदे होया उस बजुर्ग ने यह सुनेहा दिता। राजे ते वजीर की आपस में सैनत वजी, तुर पे तो आपस में गलबात हुई कि वही होणगे भीमे दे शत्रु। भीम चंद राजे नाल जिन्हां दा वैर है, सतगुरु तो किसी नाल वैर नहीं करते, पर दुनियावी लोग वैरी भी बने हुए सी गुरु महाराज दे। जदों भीमचंद वैरी बन के आउंदा सी चढ़ के, उदों सतगुरु अगों लड़ते सन, पर जदों वो शरण पै जांदा सी उदों सतगुरु फिर मित्रता दा हथ वधा दिंदे सी, क्योंकि निजम है सतगुरु दा, जिस तरह का मूँह लैके कोई आवे उस तरह का फल। और सतगुरु जी वैर नहीं सी रखते, इन्हां दा ख्याल सी कि भीमचंद नाल वैर आ उही होणगे। वजीर नूं बड़ी शरधा नाल भेटावां दे के, तोहफे दे के इसने भेजिया, जा बेनती कर। वजीर आया आनंदपुर साहब, गुरु गोबिंद सिंह साहब के दर्शन किए, नमस्कार की, बड़ा आजिज बन के राजे वालों बेनती की। तो सतगुरु महाराज जी इसे गल की उड़ीक कर रहे थे, उसनूं तारना सी जिहड़ा सारी उम्र बंदगी करदे जिहदी लंघ, क्योंकि सतगुरु तो हिरदे की गल जानते हैं ना। तो दुनिया नूं तो ठगिया जा सकता हिरदे च कपट रख के, पर परमात्मा नूं नहीं। परमात्मा वास्ते हिरदे च शरधा ही होवे तो फिर ही गल बनेगी, भावना पैदा हो। इस प्रकार
इन्ना सिदक रख के सारी उम्र उस बजुर्ग ने सिमरिया सी वाहिगुरू, उन्होंने फल तो मिलना सी, पर वजीर नूं उहदा सुनेहा देना भुल गया। सतगुरु महाराज जी तैयार हो के कहने लगे, जाओ वजीर जी जाके इंतजाम करो, प्रबंध करो, असीं कल नूं चले पावांगे, आवांगे राजे नूं कह दिओ। सतगुरु जी आनंदपुर साहब तो चल के नाहड़ रियासत विच अपने पवित्र मुबारक कदम रखे। शाही महलों दे विच हजूर दा उतारा कराया गया। लोड़ सी राजे नूं, बड़ी भावना नाल सेवा की। फिर सतगुरु महाराज जी रोज़ ही सैर नूं चढ़दे ने, ते एक दिन राजे ने कहता भी महाराज जे तुहानूं कोई जगह पसंद आ जाए तो लम्मा समा अपनी तशरीफ इत्थे रखो मेरी रियासत विच, हुक्म करो मकान बन जाणगे फटाफट। तो महाराज साहब फिर तुरिया जांदियां इस जमुना के किनारे बड़े रमणीक बिरछ सी, बड़े सुंदर पंछी आलाप करते सन। सतगुरु जी का चरण इत्थे टिकिया। भाई वीर सिंह जी लिखते, तुरिया जांदियां जिथे हजूर का पाँव टिकिया उसका नाम बनया पाउंटा। हजूर का कदम इत्थे टिकिया तो कहने लगे राजा ये जगह सानू पसंद है। और छेती छेती कुछ महीनों में उत्थे मकान बहुत सोहने उसर गए। सतगुरु महाराज इत्थे टिके हुए ने, शिकार नूं चढ़ते हैं, जंगी अभ्यास हुंदा, कवायदा हुंदियां, पर राजे नूं उस बजुर्ग का जिन्हें 10 पाए से उसका सुनेहा विसर गया है। दुनियादारां नूं गरीबां दे सुनेहे कित्थे चेते रहिंदे, अपना मतलब तो हल हो गया पर उसकी जिहड़ी बेनती सी वो गुरु महाराज नूं नहीं की। पर हुण गुरु अधूरा नहीं ना भी बेनती करन नाल ही पता लगे। सतगुरु नूं पता हजूर ते आई इसे वास्ते। लेकिन पोह दे दिन सी ते सतगुरु महाराज जी रजाई विचों कुछ लेट उठे ते नाल बचन करदे हुंदे ने, उमरा वडेरी हो गई है, शरीर च सत्या नहीं रही, हड्ड कुड़कदे ने, सियाल पाला बहुत वध गया है, मूर्छित हो जाइदा, कई बार शरीर मूर्छा हो जाता, इहो जिहे वजन कर। सिख बड़े हैरान पे जो चढ़ती जवानी है अजे तो दाड़ा आया ही है, तो गुरु महाराज जी की बचन कर रहे हैं। उदों 21-22 साल की उम्र सी गुरु कलगीधर दी, भी एक ही गल कह रहे हैं भी हड्ड कुड़कदे है, उमरा वडेरी हो गई है, शरीर च सत्या नहीं रही, ठंड झली नहीं जाती, एक ही बचन। सतगुरु महाराज ने इशनान किया, वस्त्र धारण किए, सिखां नूं आग्या हुई राजे नूं कहो कि 5-7 सिपाही नाल लै आवे, 5-7 सिख साडे नाल तैयार हो घोड़सवार, एक छोटा जिहा खासा भी उत्ते रख लो, घोड़े ते पालकी छोटी जी रख लो, घ्यो केसर ते कस्तूरी नाल लै लो, असीं किते जाना। सिख समझ गए तो कोई बुजुर्ग अवस्था विच प्यारा है गुरु का, उहदे पास जा रहा। राजा आ गया, वजीर आ गया, नाल सिपाही सिख भी तैयार हो गए, सारी समग्री नाल ली। तो सतगुरु जी ने वागां उधर नूं मोड़ियां जिधरों जमुना आ रही, और जिथे टौंसा नदी विच मिलदी सी जाके उत्थे पहुँच गए। इस बुजुर्ग दे कोल एक गरीबणी जी माई ने अपना बेटा छड़ दिता सी अपने चढ़ाई करन तो पहला। उस बच्चे का नाम भाई वीर सिंह ने लिखिया चांदो, और उस बुजुर्ग का नाम नहीं मिलिया ग्रंथां चों। वो चांदो जिहड़ा सी उहदी माँ सौंप के रिशी नूं आप चढ़ाई कर गई सी। उस चांदो का भी इस दुनिया ते इस रिशी तो बगैर होर कोई नहीं सी। उन्होंने भी यह सुनेहा कंठ कराया होया सी, सहजे सहजे अखर अखर करके उन्हें सुनेहा जवानी याद किया होया सी। तो उन्होंने दस्सिया होया सी बेटा किते मिल जाण तो उन्हों की निशानी ये है कि जदों बाहां हेठां नूं करनगे गोडियां तो लंमियां होणगीਆਂ। ये खास निशानी दसी हुई सी। हुण सियाल के दिन गऊआं चारन दूर नहीं सी जांदा चांदो, घाह वढ़ लिआउंदा सी, गऊआं नूं चारदा सी, दुੱਧ चो के रिशी नूं छकाउणा, जे पेट की भुख ने सताउणा तो नेड़े नगर विचों 2-4 प्रशादे भी लै आउणे। और लभदा सी, खोजदा सी कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज मिलण, जिन्हां बारे रिशी ने दस पाए। जदों सतगुरु गए, एक पासे राजा खलोता है, उहदा भी शाही लिबास, एक पासे गुरु गोबिंद सिंह साहब खलोते। चांदो वेख रहा सी और उन्हें ख्याल किया भी हुण बाहां हेठां नूं करन ते पता लगे। राजे ने बाहां हेठां नूं कीतियां ते निराश हो गया भी ओह ये तां नहीं। हुण दूजियां वल वेख रहा, गुरु गोबिंद सिंह साहब वल। हजूर ने वेख लिया, उहदे मन की भावना नूं हेठां नूं बाहां कीतियां, गोडियां तो लंमियां होईयां, उहदे अंदरों एक चीक निकली और दौड़ के आके गुरु कलगीधर नूं जफा मार लिया। हजूर दे हस्त कमलां नूं बोसा करन लगा, चुम्मण लग पिया और प्रेम विच आया होया ते सतगुरु नूं कुछ नहीं कह रहे। उहदे मैले कचाले कपड़े, गरीब जिहा बच्चा सतगुरु नूं जफी पा के लत्तां नूं हस्त कमलां नूं चुम्मी जा रहा, चट्टी जा रहा। सतगुरु खलोते हुए ने। फिर वह कहण लगा ओहो मैनूं सुनेहा देना भुल गया जी। वो सुनेहा अखर अखर दुहराया, एक टौंसा नदी के किनारे ते बुढ़ा ब्राह्मण तुहाडे दर्शनां नूं सिकदा, सधराउंदा, तड़फदा, लुछदा इस दुनिया तो तुर गया, दी बौड़ी करनी। उहदे कोल आदमी है नहीं सन, उहदे कोल खजाना है नहीं सी, उहदे कोल शरीर च सत्या नहीं, शरीर ऐसा सुनेहा दिता।
तो जदों इंज किया तो कहने लगा अच्छा महाराज मैं सुनेहा दे दिता, अपना फर्ज अदा करता, हुण ऋषि जी चढ़ाई कर गए होणगे, मैं उन्होंने मिट्टी क्यों टणी, शरीर का संस्कार करना। तो महाराज साहब कह लगे चांदो बेटा ऋषि जी मर गए? कहने लगा हाँ जी मर गए होणगे। अज जिहो जी हालत सी, मेरी माँ ने भी मरन लग्या इन्ना की समा लिया सी, इस करके हुण ऋषि जी मर गए होणगे। अच्छा मैं अपना फर्ज अदा करता, हुण उधर फर्ज अदा कर। महाराज कह लगे नहीं बेटा चांदो, ऋषि जी मरे नहीं हैं, जो उन्होंने अंदर इच्छा सी अजे पूरी होने वाली, अजे नहीं वो मरते। चलो बेटा सानू नाल लै चलो। अगे ला के तोर लिया, हजूर पहुँच गए और कोलियां दी अंगीठी कोल मंगाई हुई सी, ये बावजूद भी ऋषि जी मूर्छित हो गए, बेहोशी के आलम में सन। सतगुरु ने सिखा नूं कहा छेती छेती घ्यो गर्म करो, विच कस्तूरी केसर लाओ, आप उहदा सिर फड़ के गोद च लिया ते झास की। सिखा ने जंघां लत्तां ते पैरां विच झास की, उहदे सहजे सहजे नेत्र खुले, अपने आप नूं गुरु कलगीधर दी गोद विच डिठा, चेहरे का दर्शन हो गया, जिहड़ा सुरत विच दर्शन हुंदा सी प्रतख हो गया, नेत्र फिर बंद हो गए। फिर सतगुरु जी ने सहजे सहजे ढारस दे के उठाया, पालकी मंगाई तो हजूर आप हथ ला के नाल सिखां नूं कह रहे विच विराजमान करो पालकी दे ऋषि जी नूं। हथ जोड़न लगा भी महाराज मेरे सिर कर्जा क्यों चाढ़ रहे हो? महाराज कहते नहीं शरीर च सत्या नहीं, इस करके मजबूरी है। पालकी सवार किया और एक पालकी घोड़े ते रखवा ली, एक सिखदारे। चांद नूं कहण लगे अच्छा फिर बेटा तू इत्थे हुण गऊआं चारिया करे। वो रो पिया, कहण लगा जी फिर मैं दुध किनूं छकाउणा? तो हजूर कहण लगे दुध तेरा ही पिया करांगे, छड्ड के नहीं जावांगे। फिर दो सिखां नूं कह दियां गऊआं अगे ला लो, पिछे घोड़े दे बिठा के नाल लै आओ, असीं ऋषि जी नूं लै के पहलां पहुँचदे हां। फिर सतगुरु महाराज पौंडा साहब वाले स्थान ते पहुँचे। आउंदियां नूं दिन सी गुरु गोबिंद सिंह साहब के अवतार पुरब दा पोह सूदी सदनी, बहुत संगतां इकत्र होईयां सतगुरु कलगीधर नूं लभ रहीआं ते महाराज लभदे नहीं। जदों आए तो संगतां मुड़ के आईयां, सारे मुखीए सिख अगों दी आए तो पुछया महाराज तुसीं कित्थे चले गए सी, जिन्हां दी वरेगंढ मनाउणी वो लभ नहीं रहे। महाराज कहते सिखो अज तुसीं सानूं तोहफे देने सी, भेटावां नजराने देने सन, असीं संगत नूं देण वास्ते कोई तोहफा लभ रहे सी, वो लभ के ले आए। फिर महाराज साहब ने पालकी तो कपड़ा चुक दिता, कह लगे जिन्नियां संगतां आईयां सारियां इस पुगी हुई नरद दे दर्शन करो, ये शरीर के अंदर प्रेम ते नाम तो बगैर दूजी कोई चीज़ नहीं है। इस हिरदे के अंदर सिर्फ प्रेम ही प्रेम बसिया, नाम ही नाम है। इस करके ये दर्शन करके फिर साडे दर्शनां नूं अंदर आओ। इउं फिर वो सतगुरु के चरणों में उन्हें सरी छड्डिया। इस करके जिहदे हिरदे च भावना है कोई धारण की हुई, उन्होंने मंजिल जरूर मिलती है, पर जदों धर्म का काम करदिआं होइआं अंदर कपट होवे फिर नहीं ना गल बन सकती। नामदेव का पिता रोज़ ठाकुर की पूजा करता सी, दुध चोगे भोग लवाउंदा सी, पर वह पत्थर ही सी उहदे वास्ते। नामदेव नूं कह के गया उहदा पिता किसी काम चलिया, कम किते प्यो चलिया, नामदेव नूं आख सधाया, ठाकुर की सेवा करी दुध पिलावन कह समझाया। और नामदेव जी नूं बच्चे नूं नहीं सी पता भी ठाकुर जी दुध पींदे है कि उं ही पत्थर दे मूँह ला के रख लिया। नामदेव जी कहण भी दुध पीओ, आखिर वाहिगुरू प्रगट हो गया तो प्रगट हो के दुध पीता, और वो नामदेव ने प्यार लिया, पर वो प्यो नूं नहीं सी पता इस गल का, क्योंकि वो चलाक है और उन्हें पता भी ये पत्थर ही है, इन्हें किहड़ा पीना। और इस प्रकार भावना द्वारा वाहिगुरू प्रगट हो गया। पत्थर चों नहीं रब निकलिया, पत्थर रब नहीं है, भावना विचों रब प्रगट होया। धन्ना जी नूं भी इसे तरह प्रगट होया, क्योंकि वो भोले सी, वो तो असली जिउंदे जागदे ठाकुर नूं सिमर रहे सी ना, इस करके जिउंदा जागदा ठाकुर जोत जिहड़ी जागत है वो सामने आ गई। इस प्रकार अंदर भावना है जिससे उसनूं प्राप्ति हुंदी है। और हिरदे कपट मुख ज्ञानी, हिरदे च कपट है। दसम पातशाह ने लिखा भी असीं उस बंदे नूं बंदा नहीं समझते जिहदे दिल विच अंदर कुछ होर होवे ते मूँह ते कुछ होर होवे। औरंगजेब नूं जदों जफरनामा लिखिया उहदे च भजन लिखिया, हमू नर बायद शब्द सुखन वर, न शिकमे दिगर दर्द हने दिगर। औरंगजेब तेरे वर्गे लोग बंदे इंसान नहीं हैं, तुसीं कसमां भी ईमान दियां झूठियां खा जांदे, हिरदे विच कुछ होर ते मूँह तो कुछ होर बोल रहे हो। तुहाडे वर्गे बंदिआं नूं असीं बंदे नहीं समझते, तुसीं कुछ भी नहीं हो, मुरदे हो, पत्थर तुल हो। और हजूर गुरु ग्रंथ साहब का बचन है, दिलों मुहब्बत जिन सही सचिया, जिन मन होर मुख होर से कांढे कचिया। जिन्होंने मन में कुछ होर वसिया तो मुख ते कुछ होर है, वो कच्चे कहीदे हैं, वो नहीं सच्चे, वो कच्चे हैं। इस तरह झूठे काहां बिलो विस पानी, अंदर कपट है तो तुसीं जिहड़े कर्म कमा रहे हो ना,
ਉਹ ਇੰਝ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਧਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕੀ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋ ਪੰਡਤ ਦਹੀਂ ਵਿਲੋਈਆ ਭਾਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਾ ਤੱਥ। हे पंडित जी, जे दही रिड़कीए तो विचों मक्खण रूपी तत्थ निकलदा। जल मथी है जल देखिए भाई, यह जाके हावथ। ये जगत के लोग जो कुछ कर रहे हैं ना, ये इंजा जिवें जल रिड़क रहा है, पानी रिड़क रहा है, पानी विचों तो नहीं ना मक्खण निकल सकता। झूठे कहाँ बिलोवस पानी, काया मांजस कौन गुण। इत्थे ना समझना भी शरीर का इशनान नहीं करना चाहिए। इत्थे जिहड़ा तीर्थां दे जाके सिर्फ इशनान करन दे विच ही ये भावना भी इहदे नाल असीं तर जाना, इहदा खंडन कर रहे हैं। जिवें एक विद्वान का बचन है, वो कहता 3.5 मण देही दागी धोना, कि धो छड़ टुकड़ा दिल दा। और देही धोते कुछ लभै नहीं, दिल धोतियां रब मिलदा। और दुनिया दे दिखलावण कारण भज भज वड़े मसीती, गिट्टे गोडे मल मल धोवें, तेरे अंदरों ना गई पलीती। पढ़े नमाज ते करें तकबर, ये झगड़े दी पंड लीती। बुले शाह जे दिल नूं धोवें, तेरी सारी जाए पलीती। सो इस प्रकार दिल नूं धोण वाली इच्छा भावना ही नहीं पैदा होई भी है। जिहदे वकार साढ़े ताईं चबड़े हुए पाप गुनाह असीं कीते आ, हिरदे जे ते भावना है भी ये धुप जाने मुक जाण लै जाण गलों। ते जे धर्म का काम करन विच ही कपट धारिया होया है, तो फिर तो नहीं ना, फिर तो बख्शिश नहीं हो सकती। जो घट भीतर है मलना, कहते घट हिरदे के अंदर जो मलना मैल है, बकारां दी मैल है, फिर नहीं गल बनेगी। रहाओ लौकी 68 तीर्थ नहाई। लौकी तुम्बी हुंदी है, तुम्मा जिन्होंने कहते तुम्मी तुम्मा, ये कौड़ा होता बहुत ज़्यादा। कहते जे लौकी जिहड़ी है तुम्मी, ये 68 तीर्थां दे विच भी इहनूं टुबकियां लवा दीए, 68 तीर्थां दे इशनान कर लवे, कौरापन तऊ ना जाए। जिवें इहदी कुड़त्तण नहीं दूर हो सकती। कह कबीर विचारी, भगत कबीर जी कहते असीं विचार के गल कहने आ बेनती पूर्वक वाहिगुरू अगे। भाव सागर तार मुरारी, भाव साडा ध्यान वाहिगुरू वल नूं है। असीं कपट छल धोखा फरेब नहीं धारिया होया। असीं अंदरों वाहिगुरू नूं कहंदे आ भाव सागर संसार तो हे मुरारी जी, ता पार दिओ तुत कर दिओ, तार दिओ संसार तो। संसार समुंदे तार गोबिंदे, तार लै बाप बीठला। इउं हिरदे अंदरों मन दे हथ जुड़े होण, अंदर बेनती करे तो फिर जरूर बख्शिश होवेगी। सारे साधना का निचोड़ यही है कि मन बेनती करने वाला हो, इनू अरदास करन दी जाच आ जाए, शरण पैण दी जाच आ जाए, आजिज निमाणा बनन दी जाच आ जाए, फिर जरूर बख्शिश होगी। सतगुरु महाराज ते आप संगत ने भुल्लां चूकां दी खिमा बख्शणी, अगे वास्ते सुमत बख्शणी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।